عالم یہ ہے قربان جاؤ میری بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سنو جب تک تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے تمہارا اس سے بات کرنا حرام ہے نکاح نہ ہو جائے یہاں تو منگنی ہوتی ہے حرام ہے ہیلو سچ بات ہے بولو شروع ہاں ہلو ہائے چالو ہو بولو بات جاتا صحیح ہے غلط شروع بولو صحیح بات ہے ابھی تو منگنی ہوئی ہے صحیح بات ہے بالکل ابھی تو 100% بات چیت صحیح چلی ہے میری بہنوں میرے نوجوانوں ابھی تمہارا وہ لڑکا شوہر نہیں ہے وہ غیر محرم ہے اس سے بات کرنا حرام ہے گناہ ہوگا شوہر نکاح اگر ہو جائے صحیح بات سچ پھر بات بات ہے کرو وہ بالکل تمہارا شوہر ہے اس کی تم بیوی ہو اجازت ہی اجازت ہے کھلا اجازت ہے 1 گھنٹہ کیا تم 10 گھنٹہ بات کرو کہ 24 گھنٹہ بات کرو کوئی دقت نہیں ہے بلکہ اچھی بات کرو گے تو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ بولے تو ہر سچ لڑکا کو بات خوبصورت سبحان ہی لڑکی اللہ چاہیے بھائی صرف خوبصورتی نہ دیکھو وہی میں نے کہا نا 4 بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو صرف خوبصورتی پہ نہ جاؤ سیرت بھی دیکھو نا سیرت بھی دیکھو ایک لڑکا ایسی لڑکی آج کو کل تو چھاڑتا تھا صرف پیسے نہیں دیکھتے کروں ہیں فوٹو دکھاتا سیرت صورت کچھ نہیں یار دیکھتے بولے یار ناک لمبا سے نہیں کروں 5 لاکھ دیجئے کیسی بیٹا بھی بولے لڑکی ہو آنکھ چلے ٹیڑھا گا سے نہیں کروں ہٹا یہاں بولے چلو ہو نہیں پاں یہاں لگے جا ہٹا یہاں لگ جا بولے نہیں کارو سے نہیں کروں ہٹا خالی چھانٹتا تھا کسی کو پسند نہیں کرتا تھا چھانٹتے چھانٹتے اس کی عمر 40 سال ہو گئی بیاہ نہیں ہوا اس کا بوہ نہیں بولا جیجا جی بولا کہ تو بیاہ نہیں ہے تو بولے کیا بولے تی بوڑھا ہے گلو 40 سال عمر ہے گل کو اور کوئی لڑکی تو پسند نہیں کرتو بولے نہیں بھیا مور سے بھول ہے یہ تمہارا دیکھ یہ دیکھو نہیں می کرے لوں اور لڑکی میں نہیں دیکھوں اس کا بوہ نے بولا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں ہم تم یہ کالی لڑکی سے اس کی بات کرا دیا بات چل گئی بارات گئی اور وہ نکاح کر کے بیوی کو لے آیا بیوی کو نہیں دیکھا دے لڑکا رات میں بیوی کے کمرے میں گیا وہ گھنگر اٹھا کے سلام کیا السلام علیکم یہ لڑکا وہیں بے ہوش ہو گیا لڑکی سمجھی کوئی بیماری ہے کائش کرے بھائی تو پانی کا گلاس تھا وہیں پر اٹھا کے چھیٹا ماری کہ کیا بے ہوش ہو لتی می تور سے کچھ پوچھوا چاہی نو تی بے ہوش ہے گلو آنکھ کھول لڑکا آنکھ کھولا بولا جلدی پوچھ نہیں تو پھر میں بے ہوش ہو جاؤں تو لڑکی بولی کہ ہم یہاں نہیں آئے ہیں آپ ہم کو بتا دیئے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے تو لڑکا بولا کہ دیکھو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا پھر بھی ہوش ہو گیا میرے نوجوانوں کسی کی بیٹی کو جب بیوی بناؤ اس کو عزت دو بیوی سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے اور قربان جاؤ بیوی اگر روٹھ جائے تو اسے منانا یہ بھی نبی کی سنت ہے دیکھو بیوی کا روٹھنا اماں عائشہ کی سنت ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی روٹھ جایا کرتی تھی تو اللہ کے رسول اسے منایا کرتے تھے آٹا لے کے بیٹھی اماں عائشہ گوندنے کے لیے روٹی بنانے کے لیے عمر کم تھی چھوٹی عمر تھی آٹا لے کے بیٹھی نا تو رو رہی ہے تو اللہ کے رسول داخل ہوئے عائشہ کیا بات ہے رو کیوں رہی ہے کیا بات ہے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے لاؤ آٹا میں گوند کر دیتا ہوں سبحان اللہ ولد ماشاء نوجوانوں بیوی کو لقمہ اٹھا کر کھلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے اس میں بھی ثواب ہے یہاں تو عالم یہ ہے اگر شوہر اگر بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ساس دیکھ لے گی بولے گی لگو مور بیٹا کچھ دماغے گھومے دی ہے قبضہ کر لیے کویا کان کا یہ چابی یہ تعویذ نہیں ہے یہ دھوئے یہاں مور بیٹا قبضہ کر لیے مور بیٹا خود اپنا ہاتھ سے بہو کھلا نبی کی سنت ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا تو میرے نوجوانوں تمہیں یہ شعر سنا رہا تھا گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی لیکن کسی غریب سے سودا نہ
कीजिए, रहिए बिना किसी सौदे भी किए तो हो हाल ही नहीं में, सकता इसका चर्चा चाहिए न ना चाहिए, मोटा रकम जरूर चाहिए। कीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल सुभान करेंगे। अल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में करेंगे कबूल अमल। अता फरमा ले। अब बाबू बैठ जाओ, देखो ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बहुत सारे नौजवान इसमें यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे बच्चों जुमा ईमानदारी से पढ़ने बता दो, वाले तुम मुसलमान सच हो, बात। नबी का दीवाना हो, आशिक मुस्तफ़ा हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मुसलमान का बच्चा हो, मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, नमाज सिर्फ जुमे की है कि या 5 वक्त की भी नमाज है? 5 वक्त की भी नमाज है। और एक बात याद रखना, जो नमाज ना पढ़े, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी जो बेनमाजी हो, सुभान अल्लाह, सुभान उनके अल्लाह। मसलक में है, वो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो, बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं करना चाहिए। ये तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम को हम लोग मानते हैं, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, उन पर कुर्बान जाइए। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी पूछ होगी भाई, किसकी पूछ होगी, बोलो ना। लेकिन सिर्फ जुमा का पढ़ा, अच्छा जुमे की नमाज में भी ये जब नमाज पढ़ने जाता है मेरा बच्चा, नमाज की नौजवान लोग पूछोगे, तो जानते कह रहे का नमाज पढ़ता है, पूछोगे। ये देखिए, अच्छा मस्जिद कब जाता है जानते हैं? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम होता है तो घड़ी देख के ये उसी वक्त जाता है। 2 रकात फर्ज पढ़ अच्छा के 2 रकात नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, ओहो हो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको पकड़ के वहीं उल्टा देगा। जुमे में कह रकात नमाज है, कितना हुआ? पढ़ोगे 14 रकात नमाज? बांध देगा, सच भाई बात। 14 रकात नमाज पढ़ोगे? नहीं तो सिर्फ जुमा अगर पढ़ोगे तो उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? एक नौजवान 12-13 साल का लड़का पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया, बड़ी खिदमत किया, जुम्मन भी नाम है, जुम्मन नाम है, नाम से नहीं सिर्फ जुम्मन मियाँ। तो मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की रे, बहुत मोर खिदमत कर लो। बोले नहीं हजरत नहीं बोलेंगे, मुझे शर्म आती है नाम बताने में। बोले बेटा नाम बताने में कैसी शर्म, बोल मेरे की नाम से बोल। बोले मोर नाम से फटकान। बोले फटकान केरा ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। जुमा को बच्चा वो पैदा हुआ, दादा नाम रख दिया, यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले यार नाम रखे थे फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो तो अपना नाम तुम नहीं जानते हो, मौलाना लोगों से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना, इमाम साहब से पूछना, हाफिज साहब से पूछना, कारी साहब से पूछना, लेकिन अपने बच्चे का ये हक छीनना नहीं। हक मारोगे किसी का, हक किसी का छीनोगे, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में गिरबान पकड़ा जाएगा। बच्चे का हक है। अब ज्यादा तफसील है नहीं, मैं इधर गुफ्तगू करूं। मस्जिद का जलसा है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है बोलिए? अच्छा खाने काबा कहाँ है? बोलो कहाँ है? मक्का में। बोलो मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोल? भक्का। मक्का में भक्का, भक्का नहीं रे, बक्का।
इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बना। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना गए, तो जानते हो मेरे नौजवानों, जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, ओहो देखते हैं कि गमगीन है, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, गमगीन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर हो, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में बैठकर हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक खाली जमीन थी, 2 बच्चे की यतीम बच्चों की जमीन थी, बाप नहीं था, बाप इंतकाल कर गया, तो उसका चचा था। बोला कि चचा को भी बुलाओ और बच्चों को भी बुलाओ। जो दोनों यतीम बच्चे आए, चचा भी आए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम इस जमीन को बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला दबाश। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सुभान अल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा उनके लिए इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। तो सुनो, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाइयों, ये बेटा, ये बेटी, ये बीवी, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये सब यही साथ छोड़ जाएंगे। कब्र में तो अकेले जाना है, महल बनाएगा। सुभान अल्लाह। कब्र में तो अकेले जाना है, अपने अमाल का हिसाब तो अकेले ना देना है। तो क्यों ना रहती दुनिया में? ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये जवाब देना है। अब यहाँ तैयारी नहीं करोगे तो कब मरने की बात करोगे? देना पड़ेगा भाई, मरने के बाद होगा भाई, बोलो भाई, मरने के बाद होगा? यही ना करना है। आखिरत की तैयारी यही करनी है, कब्र की तैयारी यही करनी है, हशर के मैदान की तैयारी यही करनी है, जन्नत में जाने की तैयारी यही करनी है। मरने के बाद फिर ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना हज है, कुछ है ही नहीं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। ए बेटा, ए बाबू, इसको बेटा, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, तो जन्नत में घर बना लो, घर में जन्नत में बना लो। ऑफर है, अल्लाह की तरफ से ऑफर है। मेरे बंदो, दुनिया में जन्नत में घर बना लो। तुम दुनिया में मस्जिद मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, हम तुम्हारा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएंगे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में आप चंदा दोगे, ये मस्जिद कौन बनाता है? लेबर बनाता, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाता है मस्जिद। लेकिन जानते हो तुम्हारा घर कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनाएगा? फरिश्तों से, मलाइका से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर, मैं उसके लिए 10 दुआ करेंगे।
हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कटा दुआ করব ভাই, কত দোয়া করব বলুন না? 10টা দোয়া করব। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। আমি করছি না, আল্লাহর কোরআন করছে, কালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बना देगा। है कोई जमींदार, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अपने माँ बाप के नाम पर, इस सालों सवाब की नियत से। अगर अपने माँ बाप के नाम पर से करोगे इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, महल के अंदर में दाखिल कर देगा, घर के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। है कोई पहला नौजवान ऐसा इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करूंगा। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली तुम तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार है कोई पहला नौजवान है? है नारे तकबीर। ये देखिए हमारे इज्जत माफ जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की साला सवाब की नीयत से सबसे पहले फहरिस्त में हमारे एमएलए साहब का नाम आया। मैं तो यही दुआ करूंगा, अल्लाह आज हमारे अंजार नईमी साहब एमएलए हैं, या अल्लाह कल को इसे एमपी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, बहुत बड़ा ताउन आया, बहुत बड़ा ताउन आया। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। किसान बेकरी की शंगन, किसान बेकरी की शंगन। एमएलए साहेब माशाल्लाह, किसान बेकरी की शंगन, उन्होंने 50,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इस 50,000 के दान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारे एमएलए साहब के इस ताउन को कबूल फरमा दे। अल्लाह इन दोनों शेर की इस दान को, इस सखावत को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह भाई एमएलए साहब आना चाह रहे थे, वो किसी मजबूरी से नहीं आए, फोन करके उन्होंने ताउन भेज दिया है, पैसा भी पेटीएम कर दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कत जन हलो भाई, कत जन हलो?